Binomial theorem के so before binomial theorem, there are few words which I want to get familiarized, want you guys to get accustomed with. First thing, the most basic is factorial. Like factorial, सबको पता है क्या? Everybody in the class, has it been taught in sequence and series or not? सर पढ़ा है. पढ़ा है. Everybody? Like what is 3 factorial? 3 factorial is basically 3 into 2 into 1. Okay. Can we do like this? 5 factorial plus 3 factorial is equals to 8 factorial? नहीं. नहीं, ऐसे नहीं कर सकते. We cannot take factorial common or something. अच्छा, and 0 factorial is special. 0 factorial is always 1. Okay. बाकी natural numbers का तो तुम्हें समझ में आ गया. I hope so. Other than this, factorials can they be divided? 5 factorial by 3 factorial is 5 by 3 factorial or something. This also doesn't make sense. Factorial can't be taken common in addition, can't be taken common in division or multiplication. 5 factorial into 3 factorial be 15 factorial. ऐसे कुछ नहीं होता. Factorials do not work that way. Factorial is just a compressed way to write huge numbers. Okay. Now, other than this, like 5 factorial divided by 3 factorial का value बता सकते हो क्या? 20. 20. Can others also do it so fast? Don't evaluate 5 factorial actually. 5 factorial is 5 into 4 into 3 to 1 and denominator is 3 factorial which is again 3 to 1. So 3 to 1 3 to 1 cancel हो जाएगा. So you just only have to evaluate 5 into 4. Okay. So factorial divided by factorial रहेगा तो calculation is much more faster because both सारे terms हमें cancel out हो जाएंगे. Okay. So factorial तो तुम लोगों को आता ही है तो we will not spend more time on this. Should I erase this or do you want to write something from this? No, sir. Okay. Now next. Next factorial के अलावा this thing some मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कोई पूछे n factorial is something like 720 find n, ये कर सकते हो क्या खुद से? सर 6 factorial. हाँ, वो हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 720 आएगा. आई होप यू गाइस कैन डू दिस मच आल्सो योरसेल्फ. तो कितने नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा. यू गाइस हैव टू फिगर इट आउट. ओके. नेक्स्ट बायनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट चीज, देयर आर फ्यू like before entering into original binomial theorem, I want you guys to get accustomed to a symbol. The symbol, there is a meaning to this symbol. हमने HSC हमने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, but still NCR, N is the upper suffix, C and then R is the lower suffix. NCR का एक फॉर्मूला है n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now ये फॉर्मूला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर क्यों है और सी सिंबल क्यों यूज हुआ है, ये सब कुछ हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम लोग समझेंगे. बट इन बायनोमियल थ्योरम चैप्टर एनसीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो एनसीआर अगर कभी भी आ जाए तो दिस इज द वे टू इवैल्यूएट इट. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनसीआर. तुम लोगों ने पीएनसी नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा एलॉबरेट कर रहा हूँ. एनसीआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट. Binomial coefficient. In fact, it represents number of ways to choose R objects from n distinct or different objects. ठीक है, पहले इसको लिख लो ना. I'll talk to you in detail for some time. पहले फॉर्मूला लिख लो. NCR is the binomial coefficient जिसको ऐसे इवैल्यूएट करेंगे. n factorial divided by n minus r factorial. It is called as binomial coefficient and it represents the number of ways to choose
are objects from n distinct objects. सर ज्ञानेश्वर सर ने ऐसे बोला था हमको कि जो ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे वो न्यू चैप्टर हो गया, लिख के तो बताना। सबका हो गया क्या? एवरीबडी इन द क्लास? अकमल, ब्रह्मी, डवैन, पता नहीं, फिर से लूप में चला जाऊंगा नेम कॉलिंग में। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों ने लिख लिया। ओके, नाउ ये जो फैक्ट है दैट इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जो फैक्ट है इसको हम लोग थोड़ी देर में यूज करेंगे। इनफैक्ट ये फैक्ट जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में ज्यादा यूज होगा देन मतलब देन इन बर्नौली थ्योरम। इन बर्नौली थ्योरम दिस फॉर्मूला इज मोर वाइडली यूज्ड, so we'll use that and I'll show you also. Before that, if I ask you to evaluate these values, something like 5c2 को फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? 5c2 5 factorial upon 3 factorial. थैंक यू निधि जैन। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो फॉर्मूला देखो एक बार, सर n क्या है, r 3 क्या है? फैक्टोरियल इनटू 2 3 फैक्टोरियल इनटू 2 तो हाँ 2 और हाँ 2 तो फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल आता है, दैट इज राइट। ओके, इसको इवैल्यूएट कर सकते हो क्या? हाँ सर 10 आ रहा 10 5 4 3 2 1 रहेगा, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 2 1 कैंसिल कर सकते हैं ना, so that is the best part। और एक नीचे 2 फैक्टोरियल भी बचा है which is basically 2 into 1, 2 into 1, so basically we are only left with 5 into 4 in the numerator and 2 into 1 in the denominator, making the answer as 10। okay, now this is the way to generalized way to do it। हम लोग ना थोड़ा सा डिफरेंटली प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स राइट अकमल, थोड़ा सा डिफरेंटली प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। तो 5c2 अगर रहेगा तो 5 से स्टार्ट करो, 5 into 4 दो बार लिखो, नीचे 2 है इसलिए दो बार लिखो, 5 into 4 divided by 2 into 1। हम लोग we are going to predict this 5 into 4 upon 2 into 1 directly and write down the answer। okay, just get a hold of this। अभी for example 63 इवैल्यूएट करना है, 63 इवैल्यूएट करना है, फॉर्मूला तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आएगा, उसकी जगह हम लोग ऐसे कर लेते हैं 6 5 4 तीन बार, क्योंकि नीचे 3 है, डिवाइडेड बाय 3 to 1, फिर 3 to 1 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 63 का वैल्यू भी 63 का वैल्यू 20 आएगा। नाउ फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक 10c3 होगा तो क्या लिखूं? 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 2 1, 10c3 के लिए 10 9 8 तीन बार डिवाइड बाय 3 to 1, इसको अभी इवैल्यूएट करना है, दैट इज नॉट ए बिग डील। 2 4s are 8 और 3 3s are 9, फिर 20 हाँ 3 4s are 12 into 10 120 आएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, जस्ट थोड़ा सा फास्टर कैलकुलेशंस के लिए हर बार फैक्टोरियल फॉर्मूला लिखने की जगह सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे एनसीआर जो है 5-6 इवैल्यूएट करना पड़ सकता है, दैट शुड नॉट बी बिग डील, तो इट शुड हैपन इन लाइक few seconds each NCR to evaluate। okay, फिर इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, I want to show more things। ओके सर।
it will can you tell me what will be the value of something like 30C1 and 30C0? That's like Kirti. Okay, that side Freya. Akmal, right? Ayush, I'm curious कैसे किया? Yes, correct. Ashley, right? देखो 30C1 फॉर्मूला से कर रहे हो कि जिस तरीके से ये कर रहे हो वैसा? हाँ अगर सर एक गलती किया, पहले का 30 फैक्टोरियल ही आया। पहला वाला 30 फैक्टोरियल नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला यूज करना चाहता है तो 30C1 बन जाएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 1, 29 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। फिर 30 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेगा तो 30 इंटू 29, 28, 27 वो सब कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ और बचेगा सिर्फ 30, बचेगा सिर्फ 30। ओके 30C0 फॉर्मूले से करना एक बार। NCR is n factorial divided by n minus r factorial r factorial। इस क्वेश्चन में r ही 0 हो गया, r ही 0 हो गया तो न्यूमरेटर में 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 30 minus 0 factorial which is again 30 factorial into 0 factorial। 0 factorial is 1 and 30 factorial will cancel out। तो जन्माजय, हाँ that's right, Dwayne also correct। निधि चेक करना सेकंड वाला, 0 फैक्टोरियल इज 1 और डिनोमिनेटर में है वो। ओके, हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल आंसर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई विल वेट फॉर लॉन्गर टाइम दिस टाइम। सर फोर्थ वाले में लेकिन वो आपने जैसे बोला वैसे नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं, 30C1 होगा तो लोअर सफिक्स 1 है तो एक ही बार लिखना है। सो 30C1 इज बेसिकली 30 एक ही बार डिवाइडेड बाय 1 बस। ओके, 2 बार 3 बार नहीं लिखते हैं ना। हाँ सर। सी जितनी बार रहेगा उतना। ओके मैं इन सबको यूज करवाता हूँ थोड़ी देर में। उसके पहले वन अनदर फैक्ट, व्हाट अबाउट 100C0? 100 sorry 100C0 1 NCR is n factorial upon n minus r factorial r factorial। r 0 हो गया, r 0 हो गया तो राइट हैंड साइड कोई चीज सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? r का वैल्यू 0 अगर हो गया तो लोअर सफिक्स अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल ही बचेगा, दैट इज राइट। तो डिनोमिनेटर का n फैक्टोरियल न्यूमरेटर का n फैक्टोरियल जरूर कैंसिल हो जाएगा ना। और व्हाट अबाउट दिस r फैक्टोरियल? वो 1 है, वो 1 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा?
1. 1 ही रहेगा, ठीक है। 100C0 भी 1 ही है, तो इन जनरल MC0 को 1 बोल सकते हैं, विच विल मेक यू राइट इट इन सम टाइम। अच्छा, ओके। NC1, NC1 N. 100C1, 100. 100 N. सिर्फ 100 रहेगा अपॉन 1, या सिर्फ NC1 इज जस्ट N। ओके, नेक्स्ट चीज 100C40 है, इवेल्युएट करना नहीं चाहिए, इट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स राइट हेत। 100C40 को फॉर्मूले से यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या? 60 factorial into 40 factorial. 40 फैक्टोरियल, ठीक है। हर बार नोटिस करो कि डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टोरियल 60 के एडिशन और 40 के एडिशन 100 रहता है हर बार। n-r और r के एडिशन हमेशा n रहता है। ओके, नाउ 100C60 पूछे तो वो भी सेम है। 100C60 पूछेंगे तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले 100 माइनस 60 40 फैक्टोरियल, फिर 60 फैक्टोरियल आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? हाँ. Okay, so what can you conclude? Like 100C 25 is also same as which other value? 100C 100C 75. 75, 100C 25 और 100C 75 सेम है वैल्यूज। तो जनरलाइज करने के लिए बोलूं तो फॉर्मूला कुछ लिख सकते हो। NCR किसके बराबर रहेगा? NC N minus R. NC n-r के बराबर रहेगा, NC n-r के, दैट इज राइट। तो इनको ना थोड़े से मैं फॉर्मूले की तरह लिखवाता हूँ। राइट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ binomial coefficients, properties of binomial coefficients. The word binomial coefficient has been allotted to the symbol NCR, allotted to the symbol NCR. Properties of binomial coefficients, I'll make you write all of this in an organized manner, और ये properties जो है बार बार refer करके याद हो जाएगा। इन properties को prove करने के लिए भी multiple तरीके हैं, but I am skipping the prove that part because it is not there, not necessary for our preparation exams, but still vaguely discuss कर लेंगे। Properties of binomial, सबसे पहले first property, NCR is called as the binomial coefficients। NCR को थोड़े बुक्स में इस तरीके से भी लिखा है NR, ओके, ऊपर N और नीचे R, so then also it means NCR only, ठीक है। NCR का फॉर्मूला ऑफ कोर्स इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का कोई और सिंबल है क्या? एनी अदर सिंबल ऑफ फैक्टोरियल दैट यू नो ऑफ? ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज आल्सो n फैक्टोरियल, पता है क्या? No, sir. ठीक है, दिस इज आल्सो n फैक्टोरियल। ओके, एनसीआर को थोड़े बुक्स में इस तरीके से भी लिखते हैं, कैपिटल C ब्रैकेट में n कॉमा r, फंक्शन की तरह लिखते हैं, कैपिटल C ब्रैकेट में n कॉमा r। ऑल द सिंबल्स आर द सेम, एनसीआर ओनली। जस्ट कॉपी कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी, write down 4 प्रॉपर्टीज है बोर्ड पे, and write down few new properties that you should be familiar।
4, 5, 6, these are important properties. तुम लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अच्छा लगा था कि नहीं? लाइक ओवरऑल वाइब। थोड़ा टफ का होता है। ओके, बायनॉमियल थ्योरम भी सिमिलर है, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा ही है, बट विद दिस न्यू सिंबल्स एनसीआर से। लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। हो गया क्या लिख के? सॉरी, okay. That's it. These are the 8 of them, in which especially 4, 5, 6 are important. The most important 4, 5 and 6. फोर्थ वाला तो अभी याद हो ही गया, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम ही रहेगा। 5 एंड 6 भी धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। इनफैक्ट इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट बोर्ड पे आ गए, तो अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज ओनली टू अप्लाई ईच फॉर्मूला हाउ। तो we'll start with 4, 5, 6 properties and later use 7 and 8. लिख के हो गया तो बताना। अभी तक हमने एक्चुअली बायनॉमियल थ्योरम स्टार्ट ही नहीं किया, हमने बस एनसीआर जो सिंबल है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक्स निधि। और किसी का हो गया क्या? आर यू डन राइटिंग? हाँ सर। ओके, किसी को टाइम और चाहिए क्या? नाउ इज द टाइम टू स्टॉप मी। ओके, एक एक फॉर्मूला मेहनत करके प्रूव कर सकते हैं, हर फॉर्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एनसीआर का फॉर्मूला एंड ऑल करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, बट वी आर स्किपिंग ऑल द डिराइवेशन। ये करके दिखाना है क्या तुम लोगों को कि इट्स ओके? मतलब तुम्हारे स्कूल में पूछते हैं क्या डिराइवेशन? स्कूल के एग्जाम्स का बायनॉमियल थ्योरम तो हो गया, ठीक है। जस्ट लेट मी नो व्हेनेवर यू गाइस नीड डिराइवेशन, बट फिलहाल के लिए ट्रस्ट करके ये याद रख लो। सर वो 6th वाला डेरिवेशन करा सकते हैं। 6th वाला डिराइवेशन, ओके।
जैसे कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? n factorial हाँ, और n minus r factorial into r. आर फैक्टोरियल, हर बार डेरिवेशन यही है, सिंपल नॉलेज, जस्ट सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ओके, राइट हैंड साइड को भी इवैल्यूएट करते हैं। राइट हैंड साइड n by r तो n by r ही रहेगा। कैन यू सिंप्लीफाई दिस? n minus 1 c r minus 1, उसको कैसे लिखूं, क्या लिखूं? n minus 1 factorial n minus 1 factorial divided by, n minus r factorial हाँ, n minus 1 minus of r minus 1, तो n minus 1 minus of r minus 1 में 1 1 कैंसिल होके n minus r फैक्टोरियल बना, इंटू r minus 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अभी n minus 1 फैक्टोरियल मतलब n minus 1 n minus 2 n minus 3 ऐसे so on until 3 to 1 इंटू n कर दिया, तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? n factorial बनेगा। एंड डिनोमिनेटर n minus r फैक्टोरियल को छेड़ना मत, r इंटू r minus 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है। हम लोग ऐसे करके बर्नौली थ्योरम में हर फॉर्मूला डंप करके ही प्रूव होता है, बट permutation combination में we will derive these in a different manner. We will not use pen paper only, we will not use the formula, and then also we can derive it using a logical conclusion. That is more fun, so that is why I'll teach it in permutation combination again. Okay, that is called as combinatorial argument. Okay, in the meantime, before that, I just want a little bit of practice from you guys. First thing, जैसे कि first question write down, evaluate 24C4. इवेल्युएट 24C4, झट से आंसर बताना। बड़ा सा आंसर रहेगा, बट स्टिल दैट साइड अद्वैत, अकमल, दैट साइड निधि, यश, कीर्ति, राइट, good to see your answer, Vaidehi, that's right. Shuvayu also correct. Okay, good one guys. फॉर्मूला यूज करने की जगह ऐसे करो, 23 22 सॉरी 24 23 22 21 चार बार डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, बस इसको इवैल्यूएट करना है। तो 4 3 से 12, 12 2 से 24 और 24 कैंसिल हो जाएगा। बस बाकी को यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल। I'll write down the answer which many of them sent. It is the right answer, 10626. That side when? Okay. Second question, 24C20. That's right, Kirti. Yes, Akmal. अभी देखो नहीं, अच्छा लास्ट वाले का, हाँ ओके ओके, हाँ शिवायु,
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व मत करो गाइस, जस्ट ये देखो, सी 20 होगा तो 24 23 22 ऐसे 20 टाइम्स, 20 इज ए लार्ज नंबर। जब ऐसे लोअर सफिक्स लार्ज नंबर आएगा, देन ट्राई टू यूज द फैक्ट दैट NCR and NCN minus R are the same. NCR and NCN minus R are the same. So 24C20 is same as what? हाँ अकमल ये सही लग रहा है, इंटू 7 आएगा ना। दैट्स राइट श्रेया, कीर्ति राइट। 24C20 is also same as what? Just realize it. 24C. Yeah. That is same as 24C4 only. That is same as 24C4 itself. It's same as 24C4 only. 24C4 was evaluated already, 10626. Okay. 15C13 को क्या करेंगे? ठीक है, 2 मिनट टाइम चाहिए क्या? That's right, Moksh. Simplify कर ले. Freya and Nidhi are right. Same as 15C2. That's right, Vaidehi, Moksh. Brahmi by 2 करना भूल गया. Same with Shivayu. Nidhi correct, Freya correct. Shivayu and Brahmi check करो जरा. 15C2 मतलब 15 into 14 थोड़ी होता है. 15 into 14 divided by 2 into 1. Divided by 2 भी आएगा. Okay. ये नोट को कोई एलोबरेट कर सकता है क्या? NCA और NCB अगर इक्वल है, NCA और NCB अगर इक्वल है, तो A और B में कोई रिलेशन है क्या? सर A is equal to B, नहीं तो A plus B is equal to A. A equal to B तो जरूर करेक्ट है, और the second relation is also right. What he's saying is NCA can also be written as NCN minus A. तो NCN minus A और NCB इक्वल होंगे तो B should be same as N minus A, और अदर वर्ड्स A plus B का वैल्यू N हो जाएगा. A plus B का वैल्यू N हो जाएगा. जस्ट स्मॉल नोट टू रिमेंबर, NCA और NCB सेम है, तो या तो A भी इक्वल रहेंगे या तो A plus B का वैल्यू N रहेगा. That's right, Sonik. हेत करेक्ट, ब्रह्मी करेक्ट. जिसका भी आंसर है शिवायु चेक कर लेना, बाकी सब सही भेजो. When मोक्ष लॉल चलेगा. रैन दैट्स राइट.
अकमल मल्टीपल आंसर्स है, लेकिन जो तूने भेजा वो एक करेक्ट है। हेत, कीर्ति और भी आंसर से हेत, एक आंसर रिजेक्टेड होगा दोनों में से, और भी उनके अलावा भी और आंसर है। रिया, रिया, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट एंड देयर इज वन अनदर आंसर। रिया, शुभम जो भेजा करेक्ट है, लेकिन और आंसर है। बोलो, कोई पूछ रहा था? सर लेकिन जो बाकी सब आंसर है वो तो रूट में हो गया, वो सब किस में होंगे? लाइक वो रूट हो गया, रूट हो गया मतलब? मींस इरैशनल, इंटीजर नहीं है। इरेशनल? नहीं नहीं नहीं, इंटीजर क्या किया तूने कीर्ति? सर सबसे पहले r इज इक्वल टू r स्क्वायर। आर इक्वल टू आर स्क्वायर में आंसर्स नहीं आ रहे क्या? हाँ सर उसमें आ गया सीधे। दूसरे वाले में इरेशनल नहीं आएंगे, चेक कर। फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल अगर है, फ्रिया उनमें से एक रिजेक्ट होगा। मेथड तो सबको समझ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। 12cr इक्वल्स टू 12cr स्क्वायर, तो फर्स्ट चीज r इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो सकता है, या तो r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 हो सकता है। दोनों को सॉल्व करो गाइस। r इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब सबसे पहले r एंड r कैंसिल करोगे तो एक रूट मिस हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आज भी बहुत लोगों ने किया। आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू 0 करो, r इंटू आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 0 और 1 दो आंसर्स आएंगे। r को अगर कैंसिल कर रहे हो तो r इक्वल टू 0 फिर अलग से डिसिफर करो। ओके, कीर्ति वन ऑफ देम इज रिजेक्टेड ऑब्वियसली। सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो r के वैल्यूज 3 और -4 आ जाएंगे। तो इनमें से कोई रिजेक्ट होगा क्या? -4। -4 रिजेक्ट होगा। -4 रिजेक्ट होगा बिकॉज एनसीआर के फॉर्मूले में r फैक्टोरियल, r इज सब्जेक्टेड टू फैक्टोरियल, r हैज टू बी अ होल नंबर, r हैज टू बी अ होल नंबर, so that is why -4 is one thing which is rejected. -4 is something that is rejected. So there are total of 3 answers for the fourth question. Total 3 answers. जिससे भी 2 आंसर्स भेजे या एक आंसर भेजे चेक कर लो, और थोड़े लोगों ने -4 भी आंसर भेजा है, वो भी चेक कर लो। एक सेकंड यश ब्रह्मी, मैं चेक करता हूँ तुम लोगों का। सर ये r इक्वल टू आर स्क्वायर वाला कंडीशन कहाँ से है? एनसीए और क्यों दोनों लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से इक्वल है ना, डिट्टो है। डिट्टो डिट्टो होने के लिए आर और आर स्क्वायर इक्वल हो सकते हैं ना, समझे क्या? हाँ सर समझ। यश करेक्ट है, फिफ्थ वाला। ब्रह्मी करेक्ट है, कीर्ति करेक्ट है। दैट्स राइट निधि, एक्स्ट्रा भी भेज दिया तूने, सब परफेक्ट भेजा। दैट्स राइट श्रेया। फिफ्थ क्वेश्चन, NC12 इज इक्वल्स टू NC8, ये लिखा हुआ है। NC12 और NC8 इक्वल है, वी हैव टू इवैल्यूएट NC17 एंड 22CN। सॉरी फॉर द सैटरडे का क्लास गाइस, वो घर पे बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ चल रहा था तो इंटरेस्ट नहीं था।
दैट्स राइट कीर्ति, यश करेक्ट है। आयुष ये किसका आंसर है? हाँ दैट्स राइट आयुष, सेकंड वाला भी कर ले और क्या। शुभम करेक्ट है दोनों। दैट्स राइट आयुष। जस्ट 1 मिनट गाइस, कीर्ति यश और किसी का हो गया तो सिक्स वाला बताना। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द स्टार्ट NC12 और NC8 इक्वल होगा तो सबसे पहले n का वैल्यू 20 होगा। ये समझ में आ गया कि शुड एलोबरेट? n का वैल्यू 20 आ जाएगा, बस n का वैल्यू 20 हो गया तो वी जस्ट हैव टू फाइंड n का वैल्यू 20 इज बिकॉज 12 प्लस 8 होता है। NC12 और NC8 इक्वल अगर हो गए तो 12 प्लस 8 n होगा, या तो 12 इक्वल टू 8 होगा। 12 इक्वल टू 8 तो हो नहीं सकता, तो n 20 हो गया तो वी जस्ट हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यूज 20C 17 and 20C sorry 22C 20 that तो can सर be वो done. 20C3 एंड 22C2 हो जाएगा। Yes, that is a smarter way to do. 20C 17 is same as 20C3 which is 20 19 18 divided by 3 to 1. इतना ही सिंप्लीफाई करना है। तो किस थोड़े लोगों ने भेजा 1140 और 22C2 same as 22 sorry C20 same as 22C2 which is 22 into 21 by 2 into 1. इजी क्वेश्चन माना जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन को। n एस्टेब्लिश करो और आगे अकॉर्डिंगली यूज करो। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, रेशियोज दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड का रेशियो सेम है, तो कैसे होगा? एरेज कर रहा हूं फिफ्थ वन, किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। ओके कीर्ति, आई जस्ट कंफर्म। दैट्स राइट कीर्ति।
That's right, Archit. Good one. हेत करेक्ट है, निधि करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, Archit also, yes, yes, told. Okay. Sixth one, 2nC3 is to nC2. 2nC3 is basically 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 divided by 3, 2, 1 whole divided by nC2, n into n minus 1 divided by 2 into 1. ये रेशियो हमें 44 divided by 3 दे रखा है. अभी देखो, there are few cancellations that can occur here. n and 2n कैंसिल होगा और n-1 और 2n-2 भी कैंसिल होगा. n-1 और 2n-2 भी कैंसिल होगा. बचेगा न्यूमरेटर में 2 into 2n-1 into 2 divided by 6 whole divided by 1 by 2 is equals to 44 by 3. Rest of the question is your job to simplify, guys. दो आंसर्स आ रहे क्या शुभम? आई डाउट. इसका आंसर कितना आ रहा है सिक्स्थ वाले का? 6 आना चाहिए. दैट्स राइट अकमल, थैंक्स. That's right, Advait. Akmal is right. यश एक सेकंड चेक करता हूँ. यश करेक्ट है. Akmal and Shubham, both of you are right. I'll wait for 2-3 minutes more. कितने लोगों के सारे हो गए? If you can raise hands. Okay. थोड़ा वेट करेगा क्या यश? Okay, हेत. क्या हुआ आयुष, थक गया क्या? 7th हो गया कि नहीं तेरा? हाँ सर 7th हो गया. 8th. हाँ 8th थोड़ा सा. That's right, Kirti. Advait is right. गेस्ट मारना है क्या उसको? हाँ सॉर्ट ऑफ. इतना मुश्किल गेस नहीं रहेगा अगर गेस मारने की जरूरत पड़ रही है तो. हाँ सर.
सेवेंथ वाले में r और r+2 इक्वल हो सकते हैं, या तो दोनों का एडिशन 18 हो सकता है। एडिशन 18 हो गया तो r का वैल्यू 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर rc5 इज सेम एज 8c5। 8c5 को कैसे वैलिड कर रहे हो? 8C3 हाँ 8c3, फिर 876 बाय 321, 321 एंड 6 कैंसिल हो गए, 56 बन जाएगा। ओके ओके, लास्ट वन अद्वैत करेक्ट है, लास्ट वाला। ओके, 28c2r is basically 28 factorial divided by 28 minus 2r factorial into 2r factorial। इस बार फॉर्मूला इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज r नहीं पता। 28 into 27 into 26 कितनी बार लिखना है वी आर नॉट श्योर, तो इसीलिए वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बिकम 24 factorial divided by 24 minus 2r minus 4, like 24 minus 2r minus 4। इसको सिंप्लीफाई किया क्या? 28 minus 2r ही होगा into 2r minus 4 फैक्टोरियल। ये रेशियो 225 डिवाइडेड बाय 11 ये दे रखा है। श्योर अनिरुद्ध, नो प्रॉब्लम। पहले हमने स्ट्रेट अवे फॉर्मूला डंप कर दिया, अभी देखो कैंसिलेशंस। ट्वेंटी माइनस 2r फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या कैंसिल कर सकते हो? So 20 factorial और 24 factorial। यस, 28 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करूं? 28 into 27। 28 into 27 into 26 into 25 into फिर 24 23 22 एंड सो ऑन, वो सारे 24 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रियलाइज दैट कि 4 नंबर ही बचेंगे। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? 2r फैक्टोरियल को भी ऐसे लिखे 2r 2r minus 1 2r minus 2 2r minus 3, फिर उसके आगे 2r minus 4 2r minus 5 एंड ऑल, वो सब 2r minus 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 11। देखो यहां तक फॉलो किया कि नहीं? यहाँ तक सबने फॉलो किया क्या? क्या किया मैंने? हाँ सर। ओके, फिर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? एनीथिंग? और दिस 225 एंड लेफ्ट हैंड साइड कुछ कैंसिल हो सकता है? 25 25 कितनी बार?
9 यस 25 9 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। और ये 9 सब कट कर सकते हो 9 क्या हुआ, 9 को 27 के साथ कट 9 को 27 के साथ कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ओके तो फाइनली 2r 2r minus 1 2r minus 2 2r minus 3 इज इक्वल्स टू, मतलब ये पूरा राइट साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 11 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बचेंगे, एक 28 बचा था, एक 26 भी बचा है, और 3 एक बचा है, और कौन सा नंबर बचा, 11 भी आएगा ना। ओके इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, 28 इज बेसिकली 2 इंटू 14, 14 इंटू 2, फिर 26 इज 13 इंटू 2, वो 2 2 और 3 मिलके 12 बन जाएगा। तो बेसिकली आई कैन राइट इट एज 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। ये भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ये भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट 2r हैज टू बी इक्वल्स टू 14। r का वैल्यू 7 आ जाएगा, चारों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो वी जस्ट एक्सप्रेस द प्रोडक्ट इन दैट फॉर्म। बस ऐसे फॉर्म में आ गया तो बढ़िया है, वरना जैसे कीर्ति ने बोला गेस कर लो आर के थोड़े वैल्यूज पुट करके, वी आर श्योर दैट द आंसर इज गोइंग टू बी ए नेचुरल नंबर ओनली। Are you guys done writing? हो गया क्या? ओके जल्दी बताओ, और टाइम चाहिए कि ठीक है, मैं 2 मिनट रुकता, आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके हियर
Sorry for that. Thanks, Hit. Okay. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनसीआर तो तुम लोगों को मैनिपुलेट करना आ गया, इसके ऊपर और क्वेश्चंस आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, बट बाद में करूंगा। आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड बट स्टिल। एसएनएस में तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ा है क्या? ओके, लाइक ठीक है, थोड़ी देर के बाद करेंगे। बर्नौली थ्योरम में भी टेलीस्कोपिक सीरीज आता है। विल डू ऑल दैट लेटर। अच्छा, हैव यू गाइस बाय चांस स्टडीड समथिंग लाइक पास्कल ट्रायंगल एनी टाइम? यस सर। पास्कल ट्रायंगल पढ़ा है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि स्कूल में पढ़ा था? बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। ग्रेट, बेसिक मैथ्स में किया है तो याद है क्या सबको? यस। ओके, नाउ पास्कल ट्रायंगल का यूज क्या है? सो लाइक जब भी हम a plus b raised to n को एक्सपैंड करेंगे तो यूज होगा। हाँ, करेक्ट, दैट इज राइट। ओके, नाउ द ओनली फ्लॉ इन पास्कल ट्रायंगल इज a plus b पावर 100 अगर कोई पूछे तो हम लोगों को पास्कल ट्रायंगल 100 स्टेप्स का बनाना पड़ेगा, which will be too tedious to do. So that is why उसका एवोल्यूशन जो है बर्नौली थ्योरम में करेंगे। बर्नौली थ्योरम के पहले डिराइवेशन ऑफ द बर्नौली थ्योरम जो है हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में समझेगा, बट फिलहाल के लिए थ्योरम रट लो जो मैं बताने वाला हूँ। थ्योरम रटने के पहले x plus y the whole power 1 is basically 1 into x plus 1 into y। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, इट इज जस्ट 1 into x into 1 into y। तो बेसिकली x plus y the whole square, ये फॉर्मूला भी सब जानते हैं। x plus y the whole square मतलब व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ रहेगा? बेसिकली इसका डिराइवेशन कोई पूछे, x plus y the whole square का डिराइवेशन, तो कैसे करोगे? x plus y, हाँ स्क्वायर मतलब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, फॉर्मूले का ही डिराइवेशन पूछ रहा हूँ, ओरिजिनल। तो बेसिकली x plus y the whole square मतलब इट इज बेसिकली x plus y into x plus y 2 times। फिर अभी ब्रैकेट्स एक्सपेंड किया, ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे तो x into x स्क्वायर आएगा, x into x हो गया, फिर x into y आएगा, x into y, फिर नेक्स्ट y into x plus y into y। So that will result in x into y का टर्म 2 times, x into y भी आया और y into x भी आ गया, so 2 times x into y का टर्म आ गया plus y into y square। That is the formula and this is the simple derivation, x plus y the whole square। very very basic। okay, ना तुम लोग खुद से सोच के बताओ, in general अगर मैं x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 ये 4 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 4। x का हाईएस्ट पावर 4 ही आएगा, उसमें कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर ब्रैकेट से हम लोग या तो x या तो 1 पिकअप कर रहे हैं, हर ब्रैकेट से x या तो 1 पिकअप कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट ऐसे लिखते रहेंगे तो x पावर 4 आएगा, समथिंग इंटू x क्यूब आएगा, समथिंग इंटू x स्क्वायर भी आएगा, समथिंग इंटू x भी आएगा, और एक लास्ट में कांस्टेंट टर्म भी आएगा। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी द कांस्टेंट टर्म व्हेन आई मल्टीप्लाई दीस 4 ब्रैकेट्स? व्हाट विल बी द कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा? 24 है। 24 कैसे आएगा? 24 कैसे आया? ओके, देखो, those who are not following, this term x power 4, this term x power 4 is formed। how is it formed? हर ब्रैकेट से x या तो ये कांस्टेंट पिकअप कर सकते हैं, x या तो ये कांस्टेंट पिकअप कर सकते हैं। x raised to 4 बनाने के लिए हर ब्रैकेट से the term x only has to be chosen। तो x को अगर चूज करेंगे तो 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो x रेज टू 4 आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर मैं पूछूं x क्यूब बनाना है, हाउ शुड आई फॉर्म x क्यूब? x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके x क्यूब बनाना है। x क्यूब बनाने के लिए इन 4 ब्रैकेट्स में से कितने ब्रैकेट्स में से x पिकअप करूं और कितने में से कांस्टेंट? लिटरली मल्टीप्लाई कर रहे, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड ओपनिंग द ब्रैकेट्स बेसिकली। x क्यूब बनाने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट से x, सेकंड ब्रैकेट से x, थर्ड ब्रैकेट से x और फोर्थ ब्रैकेट से x प्लस 4 में से 4 चूज करूंगा। तो ऐसे x इंटू एक्स इंटू एक्स 4x क्यूब बनेगा। इज इट द ओनली वे टू फॉर्म x पावर 3? इज देयर नो अदर वे? नो 3x क्यूब भी बन सकता है। हाँ, x यहाँ से 3 और यहाँ से x, 3x क्यूब भी बन सकता है। और कोई? 2x क्यूब 2x क्यूब भी बन सकता है। सिमिलरली 1x क्यूब X भी बन क्यूब। सकता है। तो इन जनरल x क्यूब का कोएफिशिएंट कोई पूछे तो क्या हो सकता है? 1x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। और 10x क्यूब आएगा, 10x क्यूब। ठीक है, ओके। अगर मैं एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट पूछूं तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कैसे बनेगा? चार ब्रैकेट्स में से एक्स, हाँ, कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 1 into 2 into 3, 3 into 4. 1 2 फिर x और x, वो एक कॉम्बिनेशन है। और 2 3x into 2 x 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो 4 सकता है, 3 into 4 1 भी भी हो हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस कुछ हमें सेलेक्टिवली चूज करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक द फंडामेंटल थिंग। इसका कोई नाम नहीं है, बट तुम्हें समझ में आना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर कैसे जनरेट होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन करना, इट सीम्स, मतलब इसका कोई टॉपिक नहीं है, बट यही लॉजिक हम लोग बर्नौली थ्योरम में यूज करेंगे। एक क्वेश्चन करते ही समझ में आएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन find the coefficient of x cube in the product x minus 3 x plus 5 x minus 1 x plus 2 x minus 8. Find the coefficient of x cube in this product. It will be a lengthy calculation. x cube बनाना है। नॉट एक्यूरेट, यश। प्लस माइनस का पंगा है, हो रहा है यहाँ पे। Just for your information, there will be a total of 10 possibilities. There will be a total of 10 possibilities. Can you tell me one possibility, anybody? X cube कैसे बनेगा?
कितने ब्रैकेट से कांस्टेंट ले रहे हो और कितने ब्रैकेट से x ले रहे हो? 3 ब्रैकेट से 3 ब्रैकेट से x और 2 में से constant। 2 में से कांस्टेंट। जैसे कि पहला दूसरा कांस्टेंट होगा तो बाकी सब x लेंगे, तो -3 इंटू 5 हो सकता है। तो -3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन ले लो। -3 इंटू -1 भी आएगा, -3 इंटू 2 भी आएगा, -3 इंटू -8 भी आएगा। ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। इनके अलावा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन -3 के साथ तो सारे काउंट कर लिए, ऑर्गेनाइजली काउंट करो। नेक्स्ट फिर 5 minus 1 5 5 इंटू 2 -1, 5 minus 5 इंटू 2, 5 इंटू -8, फिर -1 इंटू 2, -1 इंटू -8, फिर एक लास्ट 2 इंटू -8। ये सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, 10 कॉम्बिनेशंस होंगे टोटल। इन 10 कॉम्बिनेशंस के एडिशन करके एक्यूरेटली बताओ। That side, Kirti. Check karo guys, others also do it accurately. That's right, Ria. Very nice to see your answer accurately. ओके, क्लियर है? तुम लोग खुद का दिमाग लगाओ। जब मल्टीपल ब्रैकेट्स है और x का कुछ पावर पूछे और तो we just have to see the combinations. This is like the fundamental logic of this binomial theorem chapter. Fundamental logic. What do you think, x power 4 के लिए ज्यादा कॉम्बिनेशंस आएंगे कि कम कॉम्बिनेशंस? x power 4 के लिए सर कम आएगा। कम आएंगे, यस। सर और x 5 यस, और x power 5 के लिए तो एक ही कॉम्बिनेशन है। सर उसका तो कोएफिशिएंट ही 1 क्या क्या? हाँ 1 ही होगा, यस। 1 ही है। या ऑफ कोर्स x power 5 का तो 1 है। ओके, कीर्ति एंड रिया ने सही भेजा और किसने भेजा नहीं? शुड आई वेट और आर यू गाइस नॉट डूइंग इट, और क्या है सिचुएशन? Okay, I'll move along. The answer happens to be -39. The answer is -39. इन सबको ऐड कर लो, that is your job to do. Okay, next, moving on to binomial theorem. ये जो लॉजिक है इसको binomial theorem में पुट करेंगे. Like I was discussing, x plus y the whole square, x plus y the whole cube, x plus y the whole cube. Now try to खुद का दिमाग लगाओ. x plus y, x plus y, x plus y 3 बार, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा? 3। कितने कितने पॉसिबल वेज में x क्यूब बन सकता है? एक ही क्या 3 क्यूब? व्हाट सर? ओनली 1, मतलब ओनली 1? x पावर 3 बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, x इंटू एक्स इंटू एक्स. देयर इज नो अदर वे टू फॉर्म x क्यूब. ओके, नाउ
नेक्स्ट नंबर x का पावर थोड़ा कम करेंगे, अगर x का पावर 2 होगा तो y का पावर कितना होगा? 1. 1. वो कैसे बता रहे हो? x स्क्वायर रहेगा तो y का पावर 1 ही होना पड़ेगा। हाँ सर, लाइक ये इसमें दो से ब्रैकेट्स में अगर x एक लूं, x एक है. करेक्ट, दो ब्रैकेट में से अगर x लूं और तीसरे में से x नहीं लेना है तो फिर y को लेना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स इंटू वाई बन के एक्स स्क्वेयर वाई बनेगा। और क्या क्या टर्म्स बनेंगे एक्स स्क्वेयर वाई के अलावा? सर फिर एक x कम करना पड़ेगा. एक्स वाई स्क्वेयर बनेगा। अंडरस्टैंड द फ्लो, x का पावर कम होते जा रहा है और y का पावर बढ़ते जा रहा है। एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर, और लास्ट टर्म में क्या रहेगा? y क्यूब. वाई क्यूब। ठीक है, नो एक्स क्यूब बनने का एक ही तरीका था, तो 1x क्यूब है, दिस इज ओनली वन वे। एनी नंबर, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म एक्स स्क्वेयर वाई? एक्स स्क्वेयर वाई बनाने के लिए कैसे हो सकता है? फर्स्ट ब्रैकेट एक्स, दो सेकंड ब्रैकेट एक्स, थर्ड ब्रैकेट वाई, दैट इज वन वे। इज दैट द ओनली वे? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ब्रैकेट से x, दूसरे से x और तीसरे से y, ये एक पॉसिबिलिटी है। इज दैट द ओनली पॉसिबिलिटी और इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी टू फॉर्म x square y? सर x y x then y x x. Yes, x y x as well as y x x. How many ways? 3. x y square के बारे में बता सकते हो क्या? उसका भी 3. उसका भी 3 है, x y y। तो इनफैक्ट ऐसे करके, और लास्ट में y क्यूब 1 1। तो इसीलिए x प्लस वाई दी होल क्यूब का फॉर्मूला इस तरीके से है, x क्यूब 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर और y क्यूब। दैट इज हाउ द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। ओके, नाउ rather than remembering it this way, we will remember it in this way. This is more advisable. Try to focus right now everybody. नींद में हो तो अभी राइट डाउन फोकस करना। 1x क्यूब की जगह वी आर गोइंग टू राइट इट एज 3c0x क्यूब। ये 3 जो है, ये जो पावर है उसका 3c0x क्यूब। नेक्स्ट वाला रहेगा 3c1 x स्क्वेयर वाई, नेक्स्ट वाला रहेगा 3c2 x वाई स्क्वेयर, फिर नेक्स्ट वाला 3c3 y क्यूब। ये जो कोएफिशिएंट्स है, ये जो कोएफिशिएंट्स है वो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 ये बनते हैं। इसका डिराइवेशन जो है हम लोग पीएनसी में करेंगे, फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, x प्लस वाई पावर 5 अगर कोई एक्सपेंड करने के लिए बोले, x प्लस वाई पावर 5 तो पहले फर्स्ट टर्म बता सकते हो क्या? फर्स्ट टर्म x raised to x रेज़ टू 5. 5, कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1. 1 इज राइट, 1 इज राइट। बस फैंसीली 5c0 करके लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट टर्म x raised to 4y. y रेज़ टू 1, कोएफिशिएंट विल बिकम 5c1, 5c1। ओके, तो ये जो y का पावर है वही c के लोअर सफिक्स रहता है। नेक्स्ट वाला x क्यूब y स्क्वायर है, ये 5c2, फिर 5c3 x स्क्वायर y क्यूब, फिर 5c4 xy पावर 4 एंड 5c5 y रेज़ टू 5। दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंस वी आर स्टडीड टुडे। x प्लस वाई पावर 5 इज इक्वल्स टू 5c0 का तो वैल्यू 1 है, 5c1 का वैल्यू कितना है? कैन यू टेल 5c1 का वैल्यू ओरली? सर 5. 5, 5x पावर 4y। 5c2 ओरली कर सकते हो क्या दिमाग में कैलकुलेशन? 5c2 मतलब 5 into 4 डिवाइड बाय 2 into 1, 10 10x क्यूब y स्क्वायर। फिर 5c3, 10 हाँ दैट इज सेम एज 5c2 ओनली, वो 10 ही हो जाएगा, x स्क्वायर y क्यूब। फिर 5c4 इज सेम एज 5c1, 5. 5x raised to 5, फिर y raised to 5. So this is the formula of x plus y power 5. So we are not going to by heart this formula x plus y power 5. Understand the way that has been written, x plus y power 5. So similarly one last thing which is the original theorem of this chapter. तो तुम लोग थोड़ी चीजें इसमें बताओ। x plus y power n
कोई भी नंबर n है, कोई भी नंबर n है, तो बता सकते हो क्या क्या होगा? फर्स्ट टर्म वी आर डूइंग फॉर नेचुरल नंबर्स राइट नाउ। हाँ, एक्सप्रेस बाय पावर n, फर्स्ट टर्म क्या होगा बोलो? NC0 x x रेज टू n, फिर nc1 x रेज टू n minus 1 y plus nc2 x raised to n minus 2 y square and so on. What will be the last term? Cn y to the power n. ncn y का पावर n. अंडरस्टैंड द ट्रेंड, x का पावर कम होते जा रहा है, y का पावर बढ़ते जा रहा है। तो नेम बाइनोमियल इसीलिए दिया है बिकॉज दो नंबर है x एंड y। ट्राइनोमियल में x प्लस y प्लस z होता है बाइनोमियल थ्योरम में। these are called as binomial coefficients because these are nc0 nc1 nc2 are basically the coefficients of the binomial theorem. Okay, पहले इसको लिख लेना कुछ जो भी लिखना है, फिर आई वांट टू मेंशन फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड। जल्दी इसको लिख के बताओ, हो गया तो भी जरूर बताओ। हो गया कि नहीं? मेनली वही एक थ्योरम है इस चैप्टर में, वी विल बी मैनिपुलेटिंग द सेम थ्योरम। ओके, किसी का भी टेक्स्ट नहीं आया हो गया करके? आई होप यू आर राइटिंग। तो लिख के हो क्या बोला? लिख के हो गया। लिख के हो गया? ओके ओके, थैंक यू निधि। नाउ next, the things that you need to observe your note। फर्स्ट नोट, तुम लोग बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट हैंड सेट कितने टर्म्स हैं? राइट हैंड सेट कितने टर्म्स है एक्स प्लस वाई पावर एन में? ठीक है, थक गए, n प्लस 1 टर्म्स है, जीरो से लेके NC0 NC1 NC2 ऐसे करके NCN,
0 से लेके n तक है, n+1 टर्म्स है। n plus सम ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट ऑफ x एंड y इन ईच टर्म कितना होगा? सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म, हर टर्म में x का पावर और y का पावर नोटिस करो। x का, इस वाले में y है ही नहीं तो x का पावर n है, सेकंड वाले में x का पावर n-1 है, y का पावर 1 है, तो एडिशन n रहेगा। n में थर्ड वाले में भी n-2 और 2 है, एडिशन हमेशा n रहेगा, हमेशा एडिशन n रहेगा। ओके, अच्छा नाउ binomial coefficients are of course these nc0, nc1, nc2. These are called as binomial coefficients. Next, can you guys predict what will be the general term? जनरल टर्म मतलब आर के टर्म्स में बताना है, आर के टर्म्स में बताना है, तो लेट अस से एनसीआर है, लेट अस से एनसीआर है। कैन यू सी द पैटर्न एंड टेल मी एनसीआर रहेगा तो x का पावर कितना रहेगा, y का पावर कितना रहेगा? x का पावर n रहेगा, x का पावर n रहेगा, सर n minus r. n-r रहेगा, और y का पावर कितना रहेगा? r रहेगा, r रहेगा। ये कौन सा टर्म है? जैसे कि r को अगर 0 लिख दूं तो कौन सा टर्म आएगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट सर टर्म तो आएगा। ये r plus r को 1 2 लिखेंगे तो कौन सा टर्म आएगा? r को 2 लिखेंगे मतलब ये वाला टर्म आएगा, r को 2 लिखेंगे मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म रहेगा, थर्ड टर्म रहेगा। इन जनरल ये रहेगा tr+1, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मेट में पूछेगा तो tr+1, tr+1 is basically NCR, x power n-r, y power r. This is the general term. Okay, write down this note, ये चारों लिख लेना। I'll wait for 1 more minute. By the end of the lecture तुम लोग थक जाते हो क्या ऑनलाइन में? हाँ सर। वही ऑफलाइन तो वेट कर करके अभी क्या बुड्ढे हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। सर सही में। तुम लोग नहीं बोला ना तुम्हारे स्कूल में ऑड इवन करके कुछ बुला रहे? नहीं सर, हम boys और लोग girls। थाने में एक स्कूल था हीरानंदानी फाउंडेशन करके, HFS, तो उन लोगों ने भी ओपन किया था, फिर किसी एक को कोविड हो गया तो फिर से सबको बंद कर दिया। पर स्कूल तो चालू तो हो गए। I'll move on to the next concept. उसके पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस से एक दो क्वेश्चन करते हैं, राइट ऑन, जस्ट ओनली ए लिटिल बिट, नॉट मच। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा रेस्ट ऑफ द चैप्टर, राइट ऑन। expand 3x plus 2y power 4
बस ये फॉर्मूला यूज करके ट्राई करना, एक्सपेंड करना। Just give 1 minute. I'll just give you 1 minute. Try to simplify. Straight away question है guys. A theorem is on the board only. 4c0 से start करो. 4c0 3x whole power 4. हाँ कीर्ति, seems correct. I'll just confirm it. ओके, फर्स्ट वन और किसी ने नहीं भेजा. फर्स्ट टर्म 81 x रेज टू 4 आएगा. x की जगह 3x है, y की जगह 2y है. तो वैसे टेक्निकली फर्स्ट टर्म रहेगा 4c0 3x का पावर 4, फिर 4c1 3x होल क्यूब इंटू 2y. फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है, सब. नेक्स्ट वाला 4c2 रहेगा, फिर 4c3 रहेगा, फिर 4c4 रहेगा. 3x का पावर कम होते जाएगा और 2y का पावर बढ़ते जाएगा. दिस इज द फर्स्ट आंसर. सिंप्लीफाई करना चाहिए फास्टली. वेट फॉर 1 more minute maybe. सर वो सेकंड वाले में भी करना है कैसे सिंपलीफाई लाइक सब कुछ? हाँ, सिंप्लीफाई मत करो चलेगा, ब्रैकेट्स में लिख दोगे तो भी चलेगा, बट एग्जाम में तो सिंप्लीफाइड वर्जन ही आता है. 64/729 आया ना पहला वाला. हाँ फिर 32/27 ऐसा कुछ तो आता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फोर्थ टर्म?
63. हाँ सिर्फ 63 आएगा, माइनस आएगा कि प्लस? सर वो माइनस आएगा. माइनस आएगा। 63 का वैल्यू तो ओरली कर सकता है, 20 आता है। तो क्वेश्चंस जो है पूरा एक्सपेंड करने की जगह दे विल रादर आस्क यू व्हाट इज द फोर्थ टर्म, व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, तो वो एक टर्म को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड देयर हैव बीन आस्क्ड इन जेईई मेन मल्टीपल टाइम्स, फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड ऑल। सम स्पीड लेकिन बढ़ानी पड़ेगी। ओके गाइस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, या फिर करूं क्या सॉल्व? ठीक है, नो रिस्पॉन्ड, तो आई एम अज्यूमिंग कर लोगे शायद। एक और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर सा ही है, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, सेम सेम थ्योरम, नो न्यू कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके ऊपर थोड़े से छोटे से टर्मिनोलॉजी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डन। फर्स्ट क्वेश्चन, expand x plus 2y power 5, expand x plus 2y power 5। पहले इसको फटाफट कर लो, फिर इसके इसी के पैराग्राफ में दो और क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ वो। फर्स्ट क्वेश्चन, expand x plus 2y power 5। किसी का आया तो मुझे बताओ, x plus 2y power 5 एक्सपेंड करना, कितने टर्म्स रहेंगे टोटल? 6 terms. 6 टर्म्स, पावर 5 होगा तो n+1 टर्म्स। बायनॉमियल थ्योरम इज स्मॉल चैप्टर, क्वाड्रेटिक से आधे टाइम में हो जाएगा। Thank you, Advait. Let me just confirm it with others. X raised to 5 आया first term, the next वाला 10x power 4y plus 40 x cube y square, अच्छा, plus 80 x square y cube eighty x y power 4 plus 32 y raised to 5. Can anybody confirm with Advait? ये आंसर आ रहा यही है है. ये या कीर्ति का सेम? ओके, इसके बेसिस पे मुझे एक दो क्वेश्चंस देने हैं।
ओके, रेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लोगों का हुआ कि नहीं पता नहीं, कैलकुलेशन में टाइम जा रहा है, बट रेड ऑन दिस क्वेश्चन। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, find the sum of binomial coefficients. In the previous question, find the sum of binomial coefficients. In the previous question, find the sum of binomial coefficients. Just have to understand the word binomial coefficients. तो किनका एडिशन करने वाले हो? 5C0, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इन सबको ऐड कर, लिटरली ऐड कर रहे हो कि कोई तरीका यूज कर रहे हो? सर वो फॉर्मूला है ना, यस, एक फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी था, 8th प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल 2 कोएफिशिएंट्स। power n. यस, तो आंसर इज सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 5C0 plus 5C1 plus so on until 5C5, which can be done as 2 raised to 5, which is 32. So 32 is the answer. Okay, rather one more question. In the previous question, find the sum of the coefficients. Find the sum of the coefficients. Find the sum of the coefficients. In the previous question, find the sum of the coefficients. Okay, what is the difference between sum of coefficients and sum of binomial coefficients? जैसे कि इस क्वेश्चन में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होगा? हाँ, ये कोएफिशिएंट्स 1, 10, 40, 80, 80 और 32, दिस इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। यस, इसको ऐड कर लिया, दैट इज फेयर एनफ, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ आई जस्ट वांट यू गाइस टू गिव यू क्लैरिटी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे कि a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square is always correct. Like it is correct for 1 plus 2 the whole square, 2 plus 3 the whole square, 4 plus 5 the whole square, or anything. So similarly, x plus 2y power 5 is equals to this जो expression के है, ये भी कोई भी x और y के लिए correct है, कोई भी x और y के लिए correct है। अभी try to understand guys, we need 1 plus 10 plus 40 plus 80 plus 80 plus 32, मतलब हमें x and y ना रहे तो अच्छा रहेगा। तो x and y की जगह कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? Let us put x and y both of them as 1. Let us put x and y both of them as 1. तो दोनों को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 plus 2 whole raised to 5 is equals to 1 plus 10 plus 40 plus 30. This, so in सबको ऐड करने की जगह we could have just done 1 plus 2 3 raised to 5. So the sum of the coefficients is just 3 raised to 5. Why I am telling this? Because एग्जाम में पावर 50 आता तो सारे कोएफिशिएंट्स लिख के ऐड थोड़ी करेंगे। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स जब भी आ जाए वो वेरिएबल को 1 पुट कर लो, वेरिएबल को 1 पुट करो, x एंड y को। ये लॉजिक समझा क्या मैंने क्या बोला? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स रहेगा तो x एंड y को 1 पुट कर लो, या नहीं याद आया ये लॉजिक तो यू कैन लिटरली ऐड आल्सो। फिर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज, एंड उसके लिए डायरेक्टली 2 रेज़ टू n का फॉर्मूला है। चलेगा गाइस, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का, तो कोई होमवर्क नहीं है। सेकंड लेक्चर में काफी ज्यादा होमवर्क मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम का। विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन लाइक 12 hours or less. Okay, have a nice day everyone.